I am Payal Khandelwal, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I am going to introduce you with the term DBMS, that is Database Management System. DBMS, before discussing it, let's discuss some terms. Okay, the first term is data. Data is actually a raw fact that does not give any meaning. It is an unprocessed facts and figures which is not interpreted or analyzed. Okay, the second one is information. Information is retrieved from the data. Any information which is not useful for you may be useful for some other, so it is a data for you, but it can be information for some other person. Okay, so it is a data which has been interpreted for your useful. For the next term is knowledge. Knowledge is a combination of information, experience and insight. It is any data or information which is retrieved from this part. Okay, it is the information which what you have observed. So now we can say that data, the information is retrieved from the data and knowledge is observed from the information. The knowledge depends upon user to user. Now, what is database? Database, it is a collection of interrelated data which is organized or which is set in an organized manner. Fine. So database, interrelated data, what it means? For example, your height, your health, your weight, these are the characteristics of your only. Fine. If we have to store this information for more than 10 persons, all the persons have similar characteristics with different values. So all these objects or all these entities can be stored in a single database and they have similar attributes, but the values may be different for all these entities. Now, what is DBMS? DBM is a collection of programs which is used to create and maintain the database. Itself explains DBMS, Database Management System. Database, which we have discussed already, that it is a collection of interrelated data. Management system, any system which is used to manage the database. So this is DBMS. Now we'll discuss what is the difference between the traditional file system and the DBMS, that means why DBMS is. We'll discuss what is the difference between file system and DBMS. In file system actually we store our data into different files, okay, and the different applications, programs were needed to access that data. Now there are the points on which we differentiate these two terms. The first one is data redundancy. As I have already told you that in file system we store the data into different files. Okay, so there are more chances in redundancy of data. For example, अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, फाइन, अगर उसके अंदर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो दो डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्किंग कंडीशन में है, तो दोनों डिपार्टमेंट उसका डेटा अपने अपने लेवल पर स्टोर करेंगे. इससे उसका क्या होगा, उसका सिमिलर डेटा दो फाइल्स के अंदर रिपीट होगा. तो ऐसे चांसेस हमारे फाइल सिस्टम में ज़्यादा थे. पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपका पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे सेव होता है और उसकी वजह से जो आपकी शेयरिंग होती है डेटा की वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डेटा की अलग अलग कॉपी नहीं मेंटेन करनी पड़ती. तो DBMS में डेटा रिडंडेंसी के जो चांसेस है वो कम हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा. द सेकेंड इज डेटा इनकन्सिस्टेंसी. ये टर्म जो है ये सीधे आपके रिडंडेंसी से रिलेट करती है. इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपके डेटा की एक से ज़्यादा कॉपीज़ मेंटेन रखी जा रही है तो वो सारी कॉपीज़ एक ही स्टेट पे होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसा हमने बताया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, अगर उस एम्प्लॉय के एड्रेस में कोई चेंज आता है और एक डिपार्टमेंट में उसने नोटिफाई कर दिया कि उसके एड्रेस में चेंज है और दूसरे में नहीं किया, तो दोनों डेटा में उसका जो खुद का इंडिविजुअल डेटा है दोनों के अंदर डिस्क्रिपेंसीज आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों डेटा सेम नहीं रहेंगे. ऐसी प्रॉब्लम हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं आती क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो शेयर किया जाता है. ठीक है. द थर्ड इज डेटा आइसोलेशन. डेटा आइसोलेशन का मतलब है कि आपका डेटाबेस जहाँ सेव किया जा रहा है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा सिमिलर डेटा टाइप में ही सेव किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट अगर किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है उसको एक डिपार्टमेंट डेटा टाइप के अंदर सेव कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट उसको वेयरकेयर में सेव कर रहा है. तो हमें इन दोनों डेटा को असेस करने के लिए इनके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम डेवलप करेंगे वो भी अलग अलग बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्योंकि सारा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे सेव होता है
तो हर तरह का डेटा अपने हर तरह के डेटा टाइप के अंदर ही सेव होएगा, वहाँ पर इस तरह की हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। द फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपका डेटा अगर एक जगह सेव हो रहा है तो उस डेटा को एंटर करते वक्त, डेटाबेस में एंटर करते वक्त उसके ऊपर कुछ चेक्स लगा दिए जाते हैं। चेक का मतलब है कि कोई कंडीशन लगा दी जाती है, अगर वो डेटा उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही उस डेटा को डेटाबेस में सेव किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एम्प्लॉय जब तक, अगर हम ये कंडीशन लेके चले कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अबव 18 की होनी चाहिए, उनकी एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में जब भी एम्प्लॉय का डेटा सेव किया जाएगा पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसका जो एज है वो 18 है या 18 के ऊपर है। अगर ऐसा है तो वो एंटर हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा। इस तरह की इंटीग्रिटी चेक्स को हर एप्लीकेशन प्रोग्राम में डेवलप करना फाइल सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वहाँ पे हर चेक के लिए आपको एक अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए होता था। लेकिन DBMS के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑलरेडी एक इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, आपको सिर्फ अपना एक चेक मेंटेन करना होता है कि हमें ये चेक लगाना है और वो अपने आप उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। द नेक्स्ट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि अगर आप अपने डेटा पे कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम जनरली कहाँ आती है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। हमारे पास दो अकाउंट्स है A और B। A अकाउंट, जो अकाउंट A है उसके अंदर आपका बैलेंस है 1000 और B अकाउंट में आपका बैलेंस है 200। अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रांजैक्शन है कि हमें A से 500 विड्रॉ करके और B के अंदर वो 500 डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन A से उसने विड्रॉ तो कर लिया 500, पर यहाँ पे आके आपका ट्रांजैक्शन रुक गया, आपका सिस्टम फेल हो गया, तो उस कंडीशन में A का जो बैलेंस है वो रह जाएगा 500 और जो B का बैलेंस है वो अगेन 200 रह जाएगा। यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो मैच नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम फाइल सिस्टम में ज़्यादा आती थी, लेकिन DBMS में अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना होता है वो या तो पूरी तरह से एग्जीक्यूट होता है या वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इसका मतलब है कि जो चेंजेस किए जाते हैं डेटा आइटम्स में, उन चेंजेस को एक अलग टेम्पररी फाइल में सेव किया जाता है, सीधे जो आपकी मेन फाइल है डेटाबेस की उसके ऊपर उन चेंजेस का रिफ्लेक्शन नहीं जाता है। एट द एंड जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम कहते हैं जब ट्रांजैक्शन पूरा कमिट हो जाता है, उसके बाद में जितने भी चेंजेस डेटा आइटम्स में हुए हैं उन चेंजेस को एज इट इज कॉपी किया जाता है आपके ओरिजिनल डेटाबेस फाइल्स में। तो एटॉमिसिटी को है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेंटेन करना बहुत ईजी है, पर फाइल सिस्टम में इसे मेंटेन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज का मतलब है कि एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र अगर डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त ये पॉसिबिलिटी है कि एक जना उसको अपडेट कर दे तो दूसरे को उसकी गलत वैल्यू मिलेगी, या दो यूज़र एक साथ उसको एक्सेस नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसमें इसका अगर हम एग्जांपल लेके चले, मान लो हम ये मान रहे हैं हमारे पास एक लाइब्रेरी सिस्टम है, उस लाइब्रेरी सिस्टम में किसी एक सब्जेक्ट के 20 कॉपीज़ रह सकती है बुक्स की। ठीक है, अगर इसके अंदर 19 कॉपीज़ है और इन बुक्स में जो एंट्रीज हो रही है बुक्स की वो दो जने एक साथ कर सकते हैं। दो जनों ने एक साथ लॉगिन करा, इन्होंने यहाँ पे 19 की जगह दोनों ने क्या पढ़ी वैल्यू, एक्चुअली 19 पढ़ी, और दोनों ने अपनी अपनी तरफ से उसमें एक एक बुक की एंट्री कर दी। ठीक है, तो एक्चुअल में उनके लिए तो वो वैल्यू 20 हो गई जो आपके इंटीग्रिटी को मैच कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू कितनी हो गई, दो इसमें ऐड हुआ है तो टोटल 21 कॉपीज हो गई, जो आपके इंटीग्रिटी चेक्स जो है उसको मैच नहीं कर रही है, उसको वायलेट कर रही है। तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ जो है आपके फाइल सिस्टम में मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जनरली फाइल्स के दो सेक्शन बनाए जाते हैं, रीड और राइट सेक्शन, और उस राइट सेक्शन में एंटर करते वक्त सिर्फ एक यूज़र ही उसमें अलाउ होता है। जब तक वो यूज़र उस राइट सेक्शन को लेफ्ट नहीं कर देता है दूसरा यूज़र उसमें अलाउ नहीं होगा। तो कॉन्करेंट एक्सेस को मेंटेन करना DBMS में बहुत ईजी है। द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम में अगेन सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स है वो फाइल सिस्टम में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। द थिंग इज़ वो जो प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से कि फाइल सिस्टम में आपको हर काम के लिए एक अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना होगा, जबकि DBMS में ऐसा नहीं होता। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर खुद में एक इम्प्लिसिट कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं जो वो खुद मेंटेन करते हुए चलता है।
अब ये सब तो हो गए आपके जो हमने डिफरेंसेस पढ़े, ये सब तो आपके डीबीएमएस के कुछ एडवांटेजेस भी बता रहा है, लेकिन हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड माइग्रेशन। जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो खुद में इतना एक्सपेंसिव है कि कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। तो ये जनरली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है जहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशन की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। सेकेंड थिंग इज आपका उसका हार्डवेयर, पूरा डेटाबेस आपको एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर ही सेव करके रखना है, तो उस केस में आपको उस सिस्टम का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एंड द थर्ड इज माइग्रेशन। पहले हम लोग फाइल सिस्टम ज़्यादा फॉलो करते थे, अब अगर डीबीएमएस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको उस फाइल सिस्टम को एज इट इज़ डीबीएमएस पे कॉपी करना पड़ता है। उसकी जो माइग्रेशन कॉस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस भी होने हैं, मॉडिफिकेशंस होने हैं, तो जो माइग्रेशन कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होती है। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैकअप प्रोसेसिंग। क्योंकि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज सर्वर पे सेव है, तो हमें उस सर्वर के फेल होने की कंडीशन में हमें उसकी बैकअप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसका बैकअप लेना, पूरे डेटाबेस का एक साथ बैकअप लेना भी बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कॉस्टली भी है। द थर्ड इज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेंट्रलाइजेशन। अगर आपका डेटा एक ही जगह सेव है पूरा, उस सिस्टम में अगर कोई भी सिक्योरिटी को आपकी ब्रेक करता है तो आपका पूरा डेटाबेस उसके सामने एक्सपोज हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज अगर उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, वो सिस्टम फेल हो जाता है, तब भी आप अपना पूरा डेटाबेस को लॉस्ट कर देंगे। नाउ विल डिस्कस द आंसर स्पार्क आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। फिजिकल लेवल पे आपके फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। डेट मीन्स आपका डेटाबेस फिजिकली कैसे सेव होना है, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसमें टेबल्स कैसी बनेगी, कैसे रिलेशंस बनेंगे, ये सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे डिस्कस की जाती है और आपका जो डेटाबेस है वो फिजिकली इसी लेवल पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। द सेकेंड वन इज लॉजिकल लेवल। यहाँ पे आपके कंसेप्चुअल रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं। डेट मीन्स आपके उन रिलेशन जो आपने अलग अलग टेबल सेव करी है फिजिकल लेवल पे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी, उन पे कौन कौन से इंटीग्रिटी चेक्स लगेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके लॉजिकल लेवल पे सेव की जाती है। फिजिकल लेवल पे जनरली आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वर्क करता है, बट नाउअडेज लॉजिकल लेवल पर भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही वर्क करने लगा है। आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो है आपका व्यू लेवल। यहाँ पे यूज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। व्यूज़ कैसे क्रिएट किए जाते हैं कि हमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा है तो हमारे लिए वो पूरा डेटा यूज़फुल नहीं है। अगर हम उसके अलग अलग डिपार्टमेंट की बात लेके चले तो एचआर लेवल पे सिर्फ उधर के एम्प्लॉयज़ का जो इंडिविजुअल डेटा है, जो उनका खुद का डेटा है, पर्सनल डेटा है, सिर्फ एचआर लेवल पे उसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्हें सिर्फ एम्प्लॉयज़ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। उनका जो सैलरी है या उनका जो पीएफ कटता है, सिर्फ उन्हें वही इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। तो व्यू लेवल पे सिर्फ यूज़र के व्यूज़ दिखाए जाते हैं। यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे हाई हो रहा है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि सिर्फ आपको जो नेसेसरी डेटा है वही व्यू किया जाए, उसके अलावा बाकी का जो अननेसेसरी डेटा है वो हाइड कर दिया जाए यूज़र से। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे फिजिकल लेवल पे, क्योंकि सारा डेटाबेस यहीं पे सेव हुआ है, तो यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन सबसे कम होगा। यहाँ पे डीबीए जो है वो पूरे डेटाबेस को देख सकता है। लॉजिकल लेवल पे आके उसके फिजिकल स्टोरेज से कोई मतलब नहीं है, उसे यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप से मतलब है। तो यहाँ पे जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम उसके ऊपर व्यू लेवल पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका एब्स्ट्रैक्शन हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि यूज़र को सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया जाता है जो पार्ट उसके लिए यूज़फुल है। क्लियर। इसी के अंदर अगर हम डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें, जो हमारा डेटा इंडिपेंडेंस हमें डीबीएमएस में चाहिए होता है, वो इन 2 लेवल पे होता है, लॉजिकल और फिजिकल लेवल पे। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आप फिजिकल लेवल पे आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो उसके अंदर अगर आप कोई भी चेंज करते हो, उसके स्टोरेज टाइप पे या उसके डेटा टाइप में कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो उसका कोई भी इफेक्ट लॉजिकल लेवल या व्यू लेवल पर नहीं आना चाहिए। डेट मीन्स आपका डेटाबेस, आप अपनी रिलेशन को अगर वापस से मॉडिफाई कर रहे हो तो उनके 2 रिलेशन के बीच में जो आपने रिलेशनशिप्स पहले डिफाइन करी है या जो इंटीग्रिटी चेक्स पहले डिफाइन कर रहे हैं उस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सेम आपके लॉजिकल लेवल पे होता है। अगर आप यहाँ पे आके अपने रिलेशनशिप्स में या आपके इंटीग्रिटी चेक्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो उसका कोई भी इफेक्ट यूज़र के व्यूज़ पर नहीं पड़ना चाहिए।